Hello everyone, welcome back in your business study class. In our previous video, we have studied about the 14 principles of management given by the Henry Fayol. In our previous video, we have studied first 4 principle, and today we will study our next principle, 5th principle, that is unity of direction. This, as its name suggests, this principle says that every employee, every person in the organization should move in one direction. There is unity in the direction of people. There is unity in the direction of people. Everyone should move in one direction. And to achieve this thing, this objective, Fayol says that there should be one head. There should be only one head on one group. There should be only one head on one group having similar activities and have same common objective. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें एक ग्रुप पे, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक जैसी एक्टिविटी होती हो, उस पे सिर्फ एक पर्सन अपॉइंट करना है एज अ हेड. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी डील्स इन 2 प्रोडक्ट. A company deals in 2 products. One is cosmetic and other is medicine. Now, according to this principle, we should assign only cosmetic or medicine, either cosmetic or either medicine to Mr. A. हमें A को, एक पर्सन है मिस्टर ए, उनको सिर्फ एक ही डिवीजन देना है. या तो हम उसको मेडिसिन दे दे या फिर उसको कॉस्मेटिक का डिवीजन दे दे. ओके, like this, Mr. A is given only cosmetic. This is the right way. But when we give Mr. A to cosmetic and medicine both division, then this is wrong way. Okay, this principle says there is only one head on one group. एक ग्रुप पे एक ही हेड होना चाहिए और एक हेड को सिर्फ एक ही डिवीजन देना है. आपने 2 डिवीजन नहीं देने. Why? Because when we give Mr. A both division, then there is not unity in direction. उसके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही साइड नहीं लगेंगे, दोनों साइड लगेंगे. उसको अपने एफर्ट्स कॉस्मेटिक में भी लगाने पड़ेंगे और मेडिसिन में लगाने पड़ेंगे, दोनों में लगाने पड़ेंगे. यूनिटी नहीं रहेगी. ठीक है, बट हमें इस प्रिंसिपल में क्या चाहिए? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. एक ही साइड मूव करना है. ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. इट्स एम इज to move the employee in one direction, in only one direction. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएं सभी. एक ही पर्सन ऑर्डर दे, मिस्टर ए ने जो बोला सब लोग वही करें. ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन. नाउ व्हाट आर इट्स पॉजिटिव इफेक्ट? व्हाट आर इट्स पॉजिटिव इफेक्ट? क्या बेनिफिट होगा ऐसा करने से? Specialization, because we perform the similar activity regularly. एक ही एक्टिविटी को रेगुलर करना है तो हम क्या हो जाएंगे? Specialized. We get expert in our work. So specialization is achieved. Then increase in efficiency. When we get specialized, when we get expert, then our efficiency is increased. Our way of doing work is increased. Is better. हमारे काम करने का तरीका क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा. Then easy to achieve the objective. When we get specialized, when our efficiency is increased, then it is very easy to achieve the objective. हमें सिर्फ एक ही काम को करना है, कॉस्मेटिक को, उसी की तरफ ध्यान देना है, सिंगल. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इजी हो जाएगा हमारे लिए अचीव करना. ओके, नाउ व्हाट आर इट्स वॉलेटिंग इफेक्ट? स्पेशलाइजेशन नॉट अचीव. स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होंगे हम, क्योंकि हमें 2 काम करने या 3 करने, तो हम किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे. एक डिवीजन नहीं है, 2 डिवीजन की हेडेक है हमारे ऊपर. सो स्पेशलाइजेशन नॉट अचीव. व्हेन देयर इज नो स्पेशलाइजेशन, देन आवर एफिशिएंसी इज आल्सो डिक्रीज. ओके, वी आर नॉट एबल टू गिव बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. वी आर नॉट एबल टू डू वर्क इन अ बेटर वे. देन difficult to achieve the objective. When specialization is not achieved, decrease in efficiency, then it is very difficult for us to achieve the objective. Okay, clear? Then our second principle,
that is subordination of individual interest to general interest. Subordination of individual interest to general interest. Now what is the meaning of subordination? Subordination means small, lower level, lower कर देना. Subordination and superior. Subordination means lower, and here individual interest means employee interest. Individual interest means, here individual interest means employees interest. employee का benefit, employee का benefit होना, ठीक है. And general interest means organizational benefit, benefit of organization, हमारी organization का benefit. Okay. Now what this principle says? Subordination of individual interest to general interest. लोअर कर देना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लोअर करना मीन्स कम कर देना. टू इन विच कंपैरिजन? टू जनरल इंटरेस्ट. जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको हमें प्रायोरिटी देनी है, और सुबोर्डिनेट के जो इंडिविजुअल है उसके इंटरेस्ट को क्या करना है? सुबोर्डिनेट, उसको लोअर कर देना मीन्स गिव प्रायोरिटी टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना है, हमें किसके इंटरेस्ट को देखना है? होल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना है. अगर कभी भी कुछ कंफ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है हमारे सामने कि हम अपने बेनिफिट को देखें या ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी शुड गिव प्रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू आवर इंटरेस्ट. ओके. A manager should set aside its personal interest. एक मैनेजर को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को अलग से रखना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को रखना पड़ेगा, उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट देखना पड़ेगा. ओके, क्लियर? आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ पोस्ट ऑफ फाइनेंस मैनेजर वैकेंट इन एनी कंपनी. एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट वैकेंट है. नाउ the general manager's son is applied for the same post. General manager's son applied for the post of finance manager. Now, when the interview is conducted, it is found that the general manager's son is not as capable as other candidates. जब इंटरव्यू हुआ तो ये देखा गया कि जो कैंडिडेट जनरल मैनेजर का सन है, बेटा है, वो इतना कैपेबल नहीं कि जितना दूसरे कैंडिडेट्स हैं. Now, it become duty of the general manager. According to this principle, now it become duty of the general manager that they can appoint the best candidate on the finance manager post. उसको एक अच्छे से कैंडिडेट को लगाना है फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे, ना कि अपने बेटे को. ठीक है, उसको अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने सेल्फिश एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा कि मेरा बेटा लग गया तो मुझे तो बहुत मेरे बेटे को अच्छी सैलरी मिलेगी. उसको इसको छोड़ के अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना है कि हमें फाइनेंस मैनेजर कैसा चाहिए, एफिशिएंट चाहिए, अच्छा फाइनेंस मैनेजर चाहिए ताकि वो फ्यूचर में अच्छी फाइनेंशियली डिसीजन ले सके. ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है वी हैव टू सेक्रीफाइस द इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. Now, what are its positive effect? What benefit we get when we apply this principle? Which first is everybody profit. When we apply this principle, then everybody gets the profit. एक इंडिविजुअल पर्सन को बेनिफिट नहीं होगा, सबको बेनिफिट होगा. ओके, लाइक अभी मैंने एग्जांपल लिया कि एक फाइनेंस मैनेजर हमें कैसा लगाना है, जो बेटर हो. ठीक है, बेटर हो. अगर हम बेटर फाइनेंस मैनेजर लगाएंगे तो वो अच्छा डिसीजन लेगा. लाइक हमें लोन लेना है तो वो देखेगा कि कहां से लोन हमें लो रेट पे मिल सकता है, एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर. एंड व्हेन वी गेट द लोन ऑन लो रेट, देन आवर कॉस्ट इज रिड्यूस, एंड व्हेन आवर कॉस्ट इज रिड्यूस, आवर प्रॉफिट इज इंक्रीज, एंड प्रॉफिट इज इंक्रीज, मे बी आवर एम्प्लॉयर गिव अस बोनस. बट व्हेन हमने जनरल मैनेजर के बेटे को अगर लगा दिया होता तो क्या होता? मे बी वो ऐसी जगह से लोन ले लेता क्योंकि इसको इतनी नॉलेज नहीं है, जहां से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता. तो क्या होता? कॉस्ट बढ़ जाती, कॉस्ट बढ़ती तो प्रॉफिट कम हो जाता. एंड व्हेन प्रॉफिट इज लो, देन इट मे बी आवर एम्प्लॉय डजंट गिव अस द
बोनस, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता ना। अगर तो जनरल मैनेजर के बेटे को लगाते सिर्फ जनरल मैनेजर को बेनिफिट होता, बट अब जब हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखा, देन एवरीबडी गेट्स द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लॉन्ग सर्वाइवल, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग होगी ना, ज्यादा प्रॉफिट होगा, अभी मैंने जैसे बोला आपको। ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, एंड ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी हमारी कुछ मोरल वैल्यूज भी होती हैं, अपनी कुछ ऑनेस्टी होती है कि मुझे अपना बेनिफिट नहीं देखना, सबका बेनिफिट देखना है। तो इस प्रिंसिपल को जब हम फॉलो करते हैं तो ह्यूमैनिटी भी ऑब्जर्व होती है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्टी रहते हैं, ठीक है, ऑनेस्ट रहते हैं। नाउ व्हाट आर इट्स वायलेटिंग इफेक्ट? व्हाट आर वायलेटिंग इफेक्ट? व्हेन वी नॉट follow this principle, then what are the consequences? Increase in the jealousy. jealousy की जो feelings है वो increase हो जाएगी। एक पर्सन ऊपर जा रहा है अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कारण से, दूसरा नीचे रह गया, तो jealousy आएगी। hurdles in achieving the organizational objective. hurdle means रुकावट, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रुकावटें हैं, हम सिर्फ अपना इंटरेस्ट सोच रहे हैं। एंड लास्ट, ह्यूमैनिटी इज वायलेटेड। ह्यूमैनिटी, हम अपना सेल्फिश एटीट्यूड देख रहे हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं, जस्ट लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, अपनी मोरल वैल्यूज से दूर जा रहे हैं। इट मीन्स ह्यूमैनिटी इज वायलेटेड। ओके, ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। Okay, bache, and in our next video we will study next principles of management given by the fuel. Thank you very much. Goodbye. Take care, and you have to take the screenshot of this note. I am waiting for you for 2 minutes. Thank you again.